so many things. This is all the our training, part of our training. ये हमारा ट्रेनिंग की एक हिस्सा है. तो हम लोग सब सीख रहे हैं. यीशु मसीह के ने कहा हम हमारे पास आ जाओ और सीखो. तो हम लोग सीख रहे हैं. हम लोग सब अभ्यास करने वाला स्टूडेंट्स, लोग शिक्षक है. प्रभु हमारा शिक्षा करते, पवित्र आत्मा हमको शिक्षा करता है. तो हमको सुनना चाहिए और प्रभु का वचन पालना चाहिए. हमारा विचार में, हमारा जवान से जो सुनते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीज है. तो रोज हम ऐसा करेंगे तो प्रभु की ओर हम करीब आएंगे और सिद्ध हो जाएंगे. We can become mature in God and be filled with the Holy Spirit and do the will of God in a very good way. So then we'll start with Brother Ratnaswamy. We can share, and then Brother Raju will translate. And then after this, brothers, आप लोग जो कुछ भी है अपने जीवन में प्रभु ने क्या सिखाया, इस मीटिंग से भी और इस गीत से भी, some God also teaches us through so many songs, also encourages us. So let us encourage one another. So we'll Hi. Yes. Praise God. Yeah. Okay, Studio. So, John chapter 17, verse 3. यूहन्ना के अध्याय 17 में वचन 3. And this is eternal life, that they may know you, and only true God and Jesus Christ, whom you have sent. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, जिसे तूने भेजा है. आमीन. We often hear these words. Eternal life is knowing God and His Son. अक्सर हम सुनते हैं कि प्रभु को जानना, अनंत जीवन मतलब कि प्रभु को जानना. So, how do we know God and His Son? तो हम कैसे परमेश्वर को और उनके पुत्र को जानेंगे? So we know that Enoch walked with God, Noah walked with God. और हम जानते हैं कि एनोक जो था प्रभु के साथ चला, नोहा भी प्रभु के साथ चला. So we are called to walk with Jesus. और हम लोग को प्रभु परमेश्वर ने बुलाया कि हम यीशु के साथ चलें. 1 John chapter 2:6 says we can walk as Jesus walked. पहला यूहन्ना 2:6 वचन कहता है कि जैसे यीशु चलता था वैसे हम भी चले. So John chapter 15 verse 5. I am the vine. यूहन्ना के अध्याय 16:5. हाँ, नहीं 15:5. 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. In our Christian life, without Jesus, we can do nothing. और मसीह जीवन में बिना प्रभु यीशु को हम कुछ भी नहीं कर सकते. So that is the meaning of fellowship, my dear brothers. और यही है मतलब प्रभु के साथ संगति का. If we have fellowship with him, if we have connected with Jesus, then we will bear fruits. और यदि हम प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं उसमें संगति में, तो हम बहुत सारे फल लाएंगे. So 1 John chapter 7. But if we walk, 1 John chapter 1 verse 7. But if पहला we walk, यूहन्ना अध्याय 1 में वचन 7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. This is the meaning of fellowship with Jesus. और ये मतलब है प्रभु यीशु के साथ संगति में चलना.
If we really fellowship with Jesus, we are also fellowship with our brothers and sisters in the church. और यदि हम सच में प्रभु यीशु के साथ संगति में चल रहे हैं तो हम सब भाइयों के साथ जो मसीह में है, बहनों के साथ चल सकते हैं। And second thing is 1 John chapter 3 verse 6. 1 John 3:6. पहला यूहन्ना अध्याय 1 में वचन 6, 3:6. 3:6. अध्याय 3 में 6। हाँ। यस, Whoever abides in him does not sin. Whoever sins never seen him nor known him. जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उनको जानता है। So this is the real meaning, my dear brothers. और यही सच में इसका मतलब है भाइयों। First thing, we love our fellow brothers and sisters. पहली बात यह है कि हमें सभी भाइयों और बहनों से प्रेम रखना है। We will not do sin willfully. और हम पाप फिर नहीं करेंगे। Sometimes we may fall, but immediately get up and acknowledge our sin, confess it, and forsake it. Then God will help us. हो सकता है कि आप कई बार गिर जाएं, लेकिन हमें तुरंत ही उठ के प्रभु के साथ पापों को मानकर और फिर प्रभु के साथ संगति में चलना है। So fellowship means God's will should be done in our life. और परमेश्वर की संगति में चलना मतलब प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में होना है। For example, before marriage, betrothed husband and wife, how do they know each other before marriage? शादी के पहले कैसे एक पति पत्नी दोनों को कैसे जानते हैं? So they know by their parents and hearing some friends little bit. वो अपने परिवारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा उनके बारे में कुछ उनको उन बातों को पता चलता है। Which food her husband like, which color dress he wants, some small things. और छोटी छोटी बातें जैसे उनको क्या पसंद है, वो कौन से रंग को पसंद करते हैं, ऐसा। After marriage, you see, a wife may know so many things about husband. और लेकिन जब शादी हो जाता है उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो पत्नी जो है जान जाती है। Husband also know his wife very well. पति भी जो है अपने पत्नी को अच्छी तरीके से जान जाती है। You see, as time goes on, they know each other very well. और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे एक दूसरे को पूरी तरह से अच्छी तौर पे जान जाते हैं। So even without word also, by their eyesight, they know each other, what he Yes. wants to say. और इवन उनके जो आंखों के द्वारा जो इशारा होता है पलके से उनको उनके द्वारा भी वो बातें करते हैं। So like that, we go on walk with Jesus, fellowship with Jesus, then we will come to know his real will. और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु के साथ हर दिन संगति में चलेंगे, उनके साथ साथ चलेंगे, तो हम जान पाएंगे कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। Finally, brothers, 1 John chapter 3 verse 24. पहला यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 24 देखेंगे। Now he who keeps his commandments abides in him, and he abides in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us. और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम उनमें बना रहते हैं। Yes, my dear brothers, his Spirit lives in us, and he tells us what to do, what not to do. और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर वास करता है और वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। Walking with Jesus is nothing but obey the Holy Spirit's voice. Amen. यीशु मसीह के संगति में चलना ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनकी इच्छा को पूरा करना है।
आमीन। तो ब्रदर्स, आप लोग भी जरा शुरू कर सकते हैं, सब एक एक करके आपके साथ प्रभु के साथ संगति कैसा, हाउ टू कम क्लोजर टू द लॉर्ड। तो एक एक करके जरा शेयर कर सकते हैं आपका प्रभु ने क्या प्रोत्साहन दिया, क्या बातें कर रहे हैं आपके जीवन में। एनीबॉडी कैन स्टार्ट। हॅलो, प्रेज लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, बोला ब्रदर। प्रेज लॉर्ड, प्रभुला स्तुति असो। कल जो मैसेज मैं सुना था मलकीसेदेक का, मुझे ये मोबाइल में ये क्या निकल गया, इसलिए मैं थोड़ा मैसेज मिला है। लेकिन अभी उत्पत्ति का 14 अध्याय 18 वचन क्या बोल रहा है, आणि शालेमचा राजा मलकीसेदेक हा भाकर व द्राक्षस घेऊन समोर आला। हा तर परात्पर देवाचा याजक होता। जब मलकीसेदेक वो लड़ाई में वो जिंक से आया, उसलिए क्या हो गया, भाकर और द्राक्षरस उन्हें दे। मलकीसेदेक कौन है? ये मलकीसेदेक तो प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु को भी भाई और बंधु बहन सब था। लेकिन अभी मेरे ख्याल में क्या है, अभी रत्नस्वामी ब्रदर ने जो बोला है, हमारा सहभागिता चाहिए, हमारा बंधु बहन के साथ प्रे करना चाहिए, क्योंकि हम बंधु बहन है, हम किसी के में घुट रहे हैं। लेकिन घुट रहे, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? वो हमारे का विश्वास है, वो विश्वास कम हो रहा है। इसलिए ये विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी सहभागिता चाहिए। अभी प्रभु यीशु के ये मलकीसेदेक की सहभागिता से, ये सहभागिता द्वारे प्रभु ने विजय मिला है। क्योंकि अभी हम हर जगह में, हर बंधु बहनी क्या है, सब अड़चन में है, सब क्लेश में है, सब दुख में है। इसका कारण क्या है? उस हमारे को सहभागिता चाहिए। हम प्रत्येक बंधु बहनी के लिए हम प्रे करना चाहिए। ये प्रे तो बड़ा शक्ति है, उधर सामर्थ्य है। क्योंकि मलकीसेदेक ने जब ये लड़ाई जिंका है, इसके कारण वजह से क्या है, उस बंधु बहनी हर रोज पर्दे के मागे प्रार्थना कर रहा था। ऐसा प्रार्थना करने की वजह से ये जो हम जो विश्वास में बढ़ना चाहिए, हमारा विश्वास अभी इस काल में बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ता नहीं? प्रार्थना हमको कम है। ये प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? अभी स्तोत्र संहिता 1 से 10 में लिखा है, स्तोत्र संहिता 1 से 10। हेलो, प्रेज लॉर्ड। या ब्रदर। ओके। स्तोत्र संहिता 1 से 10 में बोला है, यहोवाने माझ्या प्रभूला म्हटले, मी तुझे वैरी पदासन करीपर्यंत तू माझ्या उजव्या हाताकडे बैस। यहोवा तुझ्या सामर्थ्याची काठी सिंहातून चालवी, तू आपल्या वैऱ्यामध्ये धनी पण कर। तुझ्या पराक्रमाच्या दिवशी तुझे लोक स्वसंतोषाने पवित्रतेच्या शोभेने आपणास अर्पतील। पहाटेच्या उदरातून आलेले दहीवर असे तुझे तरुण तुला आहेत। यहोवाने शपथ वाहिली आहे आणि तो अनुतापणार नाही। तू मलकीसेदेकच्या प्रकाराप्रमाणे सर्व काळ याजक आहेस। तुझ्या उजव्या हाताकडे असलेले प्रभू आपल्या क्रोधाच्या दिवशी राजांना हाणून टाकील। तो राष्ट्रामध्ये न्यायाधीश करील। तो त्याचे
स्वरथाने प्रत्येक भरील तो पुष्कळ देशाची मस्तके हाणून टाकील. तो मार्गाने चालत असता ओढ्यातले पाणी पिईल, यामुळे तो आपले डोके वर करील. ये जो है अध्याय मलकीसेदेक के लिए है. ये मलकीसेदेक को सब तरुण लोग था, सब तरुण लोग में ऐसा आवेश, ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए. मैं प्रभु के लिए विजय मिलना है, विजय पाना है. मुझे विजय पाने के लिए प्रभु हमारे के बुला रहे हैं. ये मलकीसेदेक भागकर और द्राक्षस क्या बोलता है, भागकर है तो हमारा शक्ति देने का है, और ये द्राक्षरस है हम पवित्र आत्मा से भरने का है. ऐसे में कल थोड़ा सोच रहा था, अभी मला बोलने के लिए थोड़ा मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता है. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. मुझे भी बहुत वचनों से प्रोत्साहन मिला. जब भी मैं सब सो रहा था तभी मुझे एक वचन से प्रोत्साहन दिया प्रभु ने, जोना के अध्याय से. तो उसमें मैं जब पढ़ रहा था तो जब जोना को परमेश्वर ने बोला था कि तुम निनवे को जाना है, तो लेकिन क्या हो गया, वो तार्सिस को भाग रहा था. तो इससे मुझे मालूम पड़ा बाद में उसको उस नाव वाले के जहाज में से उनको पानी में फेंक दिया गया. लेकिन इससे मालूम पड़ा कि बाद में वो तूफान वगैरह जो आ रहे थे उसके बाद. तो कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत सारी चीजों से मुझे परीक्षा में टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि ये इस सिचुएशन में क्या करता है, ये किधर जाता है. तो कई बार वो तूफान जो पानी उसमें फेंका, तो मैं उसका ऐसा समझता हूँ कि तुम्हें बहुत वो ट्रबल है, दुख है. दुखों से मैं जब जाता हूँ, जैसे वो पानी में फेंका गया तो पानी के अंदर भी योना जो था प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से धन्यवाद दे रहा था. तभी तो ऐसे ही मैं भी, प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि तुम्हें भी हर परिस्थिति में, हर एक संकट में, दुख में, और हो सकता है प्रार्थना करते रहना तो तुम जयवंत हो जाओगे. इवन मैं स्कूल में भी रहता हूँ तो बहुत सारी चीज है जो मैं अलर्ट रहता हूँ. प्रभु मुझे अलर्ट करके रखते हैं नीति वचन से, और बताते हैं कि जहाँ अधिक बातें होती है वहाँ तुम संभाल के रहना. और इवन रिसेंटली कोई टीचर के साथ तो कोई पेरेंट्स के साथ उनका कुछ वार्तालाप हो गया था, आर्गुमेंट हो गया था. तो वहाँ पे सब टीचर उधर गए थे, लेकिन मैंने, गॉड ने बोला कि तुम केयरफुल रहना, वहाँ पे मत जाना. तो गॉड ने मुझे साइलेंट करके रखा, मैं चुपचाप रहा. प्रभु ने उस समय मुझे बचाया मेरे को. तो इससे मालूम पड़ता है कि कभी कभी परमेश्वर हमें टेस्ट भी करते हैं और हमें क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहना. तो जोना जो था परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था. तो कई बार हमें परमेश्वर जो रास्ते में ले जाना चाहते हैं उधर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा और उधर से हमें परमेश्वर गुजारना चाहते हैं. तो तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हम सच में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे या नहीं चल रहे. तो ये लेसन से मुझे प्रोत्साहन मिला. और इवन जोना जब वहां गया तो लोग को सुसमाचार प्रभु के बारे में बताया तो लोग मन भी फिराए, और इवन राजा भी. तो हो सकता है प्रभु कहीं ना कहीं हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कई बार संकट, दुख, तकलीफ आता है तो हम पीछे भाग जाते हैं. तो प्रभु बोल रहे कि उधर उधर से भागना नहीं, बल्कि उधर से जाना है. और प्रभु ने हमें आत्मा का तलवार दिया है प्रार्थना करने के लिए. तो जोना ने 3 उसमें प्रार्थना किया. और प्रभु भी हमें जब संकट, बड़ा बड़ा संकट, दुख, तकलीफ आएगा, इवन लोग, हम बुरा नहीं करना चाहते, फिर भी संसार जो है हमें हमारे पीछे पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसके जरिए टेस्ट करना चाहते हैं कि हम चुपचाप से काम करना. इवन दाऊद भी प्रार्थना करता है कि प्रभु, दीन लोग जो है, नम्र लोग, हम्बल लोग है जो सताए जाते हैं. तो प्रभु ने भी कहा है कि धन्य हुए जो तुम नम्र हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है. प्रभु की स्तुति हो. आमीन. आमीन. मधुरा गेलं. Praise the Lord. मैं ऑडिबल हूँ ना आपको? यस यस. अच्छा, मुझे ये शेयर करना था कि मेरे जीवन में जब भी पवित्र आत्मा
मुझ पर ज्यादा उतरी है वो तभी है जब मैंने उनकी आवाज सुनी है, जब मैंने जो प्रभु ने मुझे बोला था कि इसको सॉरी बोल के आओ या फिर इसको सॉरी बोल के आओ, और उसके बाद फिर जब मैंने पश्चाताप किया था, जब अपने मैं कोई पाप में गिरा, जब मेरे जीवन में सिंगल लाइफ में इवन मैरिड लाइफ में, तो मैं प्रभु से माफी मांगता इमीडिएटली। और सपोज मेरी बीवी के साथ सपोज मेरा कुछ अनबन होता था, तो मैं फर्स्ट जाके बोलता था उनसे सॉरी। मेरे जीवन में गॉड ने ग्रेस से मुझे जॉर्ज थॉमस का एक अच्छा ये दिया है, अच्छा लीडरशिप दिया है, अच्छा गाइडेंस दिया है कि भले मेरा और किसका कुछ अनबन हो, चाहे उसका 99% रॉन्ग हो और मैं 1% रॉन्ग भी हो, गॉड ने मुझे ग्रेस दिया है कि मैं तुरंत उसे सॉरी बोलता हूँ। और भले उनको लोग मेरे पे हंसे, मुझे जोक करे या मुझे बोले कि क्या फायदा तुम्हारा सॉरी का, फिर भी प्रभु ने भी बोला है तू बोल, तू एक नहीं 2-3 बार बोल। लेकिन अगर वो लोग फिर भी तुझे हर्ट करेंगे और फिर भी तुझसे माफ नहीं करेंगे, तो बस बोल ठीक है, ओके, माफ करना, एंड मैंने आपको माफ किया मेरे दिल से। अगर कोई और कंपनी में जब मुझसे हम जा रहे तो मैं उनको बोलता हूँ आप जीसस को भूलना मत, लेट्स होप टू मीट इन हेवन, आमेन। आमीन। और कोई भाई लोग जरूर शेयर करेंगे, प्रभु आपका जीवन में क्या सिखा रहा है आपको, आप प्रभु के कैसे रमेश ब्रदर, महेश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए ब्रदर। यहाँ सामने में स्क्रीन शेयर पढ़ा है, ये जो बातें मेरे जीवन में चल रही है, इसमें लिखा हुआ है कि हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। हाँ, मुझे बहुत सारी बातों की चिंता, एक डर होती है, मरने का डर, पैसा खोने का डर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे डर लगता है। और परमेश्वर ने इस समय मुझे कहा तुम डरो मत। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें मेरे को प्रभु सिखा रहा है कि हमें डरना नहीं है, केवल तुम विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा होगा। और मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन पर मैं विश्वास करना सीख रहा हूँ, और जो जो उसने कहा है वैसा जीने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। परमेश्वर मुझे अभी वही सिखा रहे हैं कि तुम डरो मत, केवल मुझ पर विश्वास करो। आमीन, आमीन। So also share a few words. We heard brother say that
John 17. We'll go to John 17. हम यूहन्ना के अध्याय 17 में जाएंगे। Verse 2. वचन 2। Even as thou gave him authority over all mankind, that to all whom thou hast given him, he may give eternal life. क्योंकि तूने उन सब को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू उन्हें उसको दिया, उन सब को वह अनंत जीवन दे। And this is eternal life, verse 3, that they may know him, the only true God, and Jesus whom thou hast sent. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्भुत परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। So the purpose that God has called us to Jesus, that we know God closely and more intimately. और परमेश्वर ने मेन मकसद ये था प्रभु यीशु को भेजने का कि हम उन्हें पर्सनली व्यक्तिगत तौर से उनकी संगति में हो जाएं। And if I believe him and trust him and obey him, then I will get more and more of the life of God. और हम उन पे विश्वास करेंगे, उन पे उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम वैसे ही वैसे प्रभु के इच्छा में चलेंगे। And if I have more the life of God I have, then the more better the fellowship with God. और जैसे ही हमारा प्रभु का जीवन हमारे जीवन में आएगा, वैसे ही हमारा जो संगति है और भी बढ़िया होता जाएगा। That is certain that Jesus said, he gave verse 6, I have manifested thy name to the men whom thou hast given me out of the world. Thine they were, and thou gave them to me, and they have kept thy word. 17:6. और वचन 6, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। So we are children of God, and God has given us to Jesus, and we must also keep the word of God, obey the word of God. Whatever God tells us, we must obey. हम सब परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया, उनका वचन दिया है, हमें उनकी पालन करना है। That is why the apostles and the disciples, even though they were uneducated, they knew God and they knew the ways of God much better than the people who had the Bible teachers around them. और इसलिए जितने भी प्रेरित थे, सब जो थे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रभु से बहुत ही संगति में थे। जिनके पास ज्ञान और बाइबल का ज्ञान था, वो प्रभु की संगति में नहीं हो पाते थे। Because Jesus said again in Matthew chapter 11 that God hides the things from the wise and the intelligent, but reveals them to babies. और जैसे कि मत्ती के अध्याय 11 में भी प्रभु ने बताया है कि परमेश्वर जो है समझदारों और बुद्धिमानों से परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है सब छिपा के रखते हैं। But he shows them to babies, reveals them to babies. लेकिन परमेश्वर जो है वो बालकों पर जो नम्र हृदय के उन पे प्रकट करते हैं। So that is why Jesus said to come to me and learn from him and to become humble in heart. और इसलिए प्रभु ने कहा कि हे वो सिद्ध लोग मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। And I was thinking the purpose of my life, why am I living every day in this world? और मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इस दुनिया में किस मकसद से जी रहा हूँ हर दिन। So we start from, we can go from the morning, go to office, eat our food, come back, sleep, do all these routine things. और सुबह उठना है, फिर काम पे जाना है, नाश्ता करना है, काम पे जाना है, वापस आना है, फिर ऐसे ही हमारा दिन चर्चा चलता रहता है। But through all these things, God is teaching us something, how to come to draw closer to him. और जब हम इन सब से गुजरते हैं तो परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम प्रभु की संगति में बहुत ही नजदीक आ जाएं। Jesus is our shepherd. He takes us through green pastures. He takes us through valleys, through difficult situations, through mountain situations. But the thing is that we must not focus on the situations, but we must focus on God. परमेश्वर जो है हमें सब हरी हरी घाटियों से चलाता है, ले जाता है, और बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों से हमें गुजारना चाहता है, लेकिन हमें उस परिस्थितियों के बारे में न सोच के हमें प्रभु के साथ चलना है। The most important thing for us is to know that through all these situations, we must come closer to God and know God and have fellowship with God.
और जो कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, उस सब परिस्थितियों के द्वारा गुजरने पर हम प्रभु को जानना है, प्रभु की संगति में हो जाना है। So we start knowing God when we are born again as a little child. As a child, we become like little children when we come to the Lord. और जब परमेश्वर में हमारा नया जन्म होता है, हम बच्चे के समान में वैसे ही प्रभु को सीखना है। In 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 12. पहला यूहन्ना अध्याय 2 में वचन 12। I'm writing to you little children because your sins have been forgiven him for your name's sake. For his name's sake. हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I'm writing to you fathers because you know him who was there from the beginning. हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। I'm writing to you young men because you have overcome the evil one. हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस दुष्ट पर जयवंत हो गए हो। So the apostle John is saying there are 3 categories of relationship with God. और परमेश्वर जो है यहाँ पे बता रहे हैं वचन से कि 3 प्रकार के हैं प्रभु के साथ संगति में चलना है। As little children, when we come to him first time, we thank God that God has forgiven our sins. But we must grow up and become strong young men, and that we can overcome the devil and fight against the devil. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु में हमें शैतान से लड़ते हुए प्रभु में बढ़ते रहना है। And then we become fathers, that we come to know God in a much more experienced way and much more intimate way. और फिर इस प्रकार से जो है हम पिता को, परमेश्वर को जान पाएंगे और बहुत ही नजदीकी रिश्ते से उनके साथ चलेंगे। So the apostle John was the age of 90 when he wrote this letter. और जो पौलुस है 90 वर्ष के थे, तभी इन्होंने वचन को लिखा था। And later on we see that he was put in an island all alone as a prisoner. और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको जेल में रखा गया था, आइलैंड की तरफ। But he still, God was there very close to him. लेकिन फिर भी परमेश्वर जो थे उनके बहुत ही नजदीक थे। He could hear the voice of Jesus speaking so clearly and loudly like a big trumpet. और वो जो थे प्रभु यीशु की जो वाणी है, आवाज है, बहुत ही नजदीकी तौर पे और साफ से सुन सकते थे। And there he wrote the book of Revelation, as Jesus told him to write. और वहां पे उन्होंने प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है उन्होंने लिखा था। So as we come closer to God, we will walk with God like the godly men walk with him. और जैसे ही हम प्रभु की संगति में बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, तो हम हर दिन ईश्वरीय व्यक्ति के समान प्रभु के साथ चलते हैं। That is why some believers have a very intimate relationship with God, and some believers do not have such a close relationship with God. और इसलिए जो है बहुत सारे विश्वासियों जो प्रभु के है, वो कई उनको संगति जो कई विश्वासियों का बहुत ही नजदीक होता है और कई विश्वासियों का बहुत ही नजदीक नहीं होता है। The more I obey God, the more I come to know him. जितना हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन के पालन करेंगे, उतना ही हम प्रभु को बहुत जल्दी नजदीक जान जाएंगे। In 1 John chapter 2 verse 6, the apostle John was saying, the one who abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. और पहला यूहन्ना 2 में वचन 6 बताता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। So if I say I belong to Jesus, I'm a Christian, I must behave in every way, try my very best and ask God's help as Jesus behaved. और अगर हम कहते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, तो हमें जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। So the Holy Spirit will show us in situations in our home, how we work, or in our office, or in the church and other places, how Jesus would do these things in this situation. और पवित्र आत्मा जो है आपको सब बातों की अगुवाई करेगा कि किस प्रकार से आपको दफ्तर पे रहना है, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार रखना है, आपको कलीसिया में भाई बहनों के साथ कैसे बर्ताव करना है, सब अगुवाई करेगा। So the purpose of our life is not to go get a good job or to do well in studies or to do a good ministry, but to know the Lord Jesus Christ and to become like him.
जीवन का मकसद जो है, ये मकसद नहीं है कि हम बहुत महान व्यक्ति बने, पैसे वाले बने या मशहूर मशहूर हो जाए। वो मकसद नहीं है, बल्कि ये मकसद है कि हम प्रभु को और भी नजदीक नजदीक से जान जाए, उनके साथ संगति में चले। So we may not become preachers and teachers or become famous, but we can come to know the Lord even from the least, even maybe a child or maybe a sister or a brother or uneducated. We can always walk very close to the Lord, and that is God's purpose for you and me, brothers and sisters, brothers. हो सकता है कि आप ज्यादा ना तो प्रचार करना जानते हो, ना ही सेवकाई करना जानते हो, लेकिन आपका प्रभु के साथ अगर संगति है, आप प्रभु के साथ साथ चल रहे, आप प्रभु को आनंद के बारे में आप जान रहे हैं। So the most important thing that we heard now is to know and walk with the Lord, and all that depends upon how I walk every day in obedience to the Lord. और मेन मकसद जीवन का यही है कि हम प्रभु के साथ प्रभु पे निर्भर रहे और प्रभु की संगति में चलते रहे, और भी उनको नजदीक नजदीक से प्रभु को जानते रहे। That's why the Apostle John had said in John chapter 14, इसलिए जो यूहन्ना के अध्याय में हम 14 में देखेंगे, yeah, 23 and 24. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। See, what a wonderful privilege that the maker of heaven and earth is going to come and stay with us if we obey God sincerely from our heart every day. और ये कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी सारे यूनिवर्स को बनाया है, वो हमारे साथ साथ में रहना चाहते हैं, हमारे नजदीक आना चाहते हैं। And he will be with us where we go to work and take control of our lives, and he will be in charge of our lives, our family, our future, everything. और प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे सब जीवन के हर एक क्षेत्र में नियंत्रण रखेंगे, चाहे वो आप काम पर हो या घर में हो या कहीं भी हो, इस शिक्षा के क्षेत्र में, सब जगह पे प्रभु यीशु आपके जीवन को नियंत्रण में रखेंगे। For the obedient child of God, God's presence and God's shadow is always about him. और जो प्रभु की वचनों को पालन करता है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में सदा बनी रहती है। That is why whenever we do any wrong thing or sin, we must immediately set it right as quickly as possible. और इसलिए जब कभी भी आप पापों में या प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो हमें पता लगता है उसी समय उसे सही करके उसे बाहर आ जाएं। So, but the Lord also says that verse 24, he who does not love me does not keep my words. और 24 में वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। If you don't keep God's words, that means you do not love God, love Jesus. और यदि आप प्रभु यीशु के वचन को पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। We may say and sing songs that we are loving the Lord, but actually Jesus said, you are telling a lie. You are not loving me because you do not obey me. और हो सकता है आप अच्छे से गाना भी गा सकते हैं, और लेकिन प्रभु आपसे कहेगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे आज्ञा को तो पालन करते ही नहीं हो। The Holy Spirit always whisper to me small things every day. This is how you should behave, how you should think, and we should always set things right as early as possible. और पवित्र आत्मा जो है हर एक जीवन के छोटे छोटे क्षेत्रों में आपसे बात करेगा, प्रोत्साहन देगा और बताएगा कि इसे इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। And that is how we come to know the Lord and become very intimate with him. और इस प्रकार से जो है हम प्रभु की संगति में बहुत ही नजदीक आ जाएंगे, उनके साथ संगति में आनंद रहेंगे। If we are not obeying the word of God, then God is not close to us at all. और यदि आप प्रभु के वचन को पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके नजदीक कभी नहीं आएगा। God still loves us, but we are not. He wants us to repent, but we are not intimate with him, and God will not speak his secrets to him, and we cannot have good fellowship with God. परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ जो नजदीकी संगति है, वो उपस्थिति है परमेश्वर को आपके जीवन से चला जाएगा। So that is why, brothers, we must not deceive ourselves to know that we are coming to a good church, CFC or any other church.
but we are disobeying God in some area, we must set it right immediately, and then we will experience the joy of God and the intimate relationship with God. इसलिए भाइयों हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है कि हम इतने बढ़िया कलीसिया में है, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो सब कुछ जो है सही नहीं चल रहा है। So that is why we must always listen to the voice of God and always set our life right in the sight of God. इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और जिस क्षेत्र में हम सही नहीं है उसे जल्दी से जल्दी अच्छा कर लेना है। So that is the most important thing in our life, brothers, in our day-to-day walk while we live in this world, to know God in a very close way. और इसलिए आज के समय में हम प्रभु के जो साथ चल रहे तो हमें उनकी संगति में उनको जानना बहुत, उनकी उपस्थिति में चलना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। The practical situations of life, all the difficulties and people and problems will show us where we are, and these situations will help us to come closer to the Lord. और जब कभी भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, संकट और कलेश आता है और उससे प्रभु गुजारते हैं तो हमें प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं और अब प्रभु उसी के द्वारा प्रभु के बहुत नजदीक हो जाएंगे। So the Apostle Paul said in Philippians chapter 3, प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पियों के अध्याय 3 में बताया गया है, verse 10, वचन 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So when we are walking close to the Lord and obeying him, then we will know the power of his resurrection. We'll know the power of the Holy Spirit in our own lives. और जब हम प्रभु की सामर्थ को उनकी संगति में चलेंगे तो हम जान पाएंगे प्रभु की जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है उसमें भी हम समझ पाएंगे। And just as Jesus suffered for us, we'll also have to go through sufferings, and we'll experience how much suffering Jesus had to suffer, and we'll also become more like Jesus in his death. And every day we can die, we'll come to know the Lord. जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुखों का उठा लिया, संकटों से गए, उसी प्रकार से हम भी जब दुख संकट जाएंगे तो और भी हम पिता के करीब आ जाएंगे। So that is why it says, because of this purpose, that I may get the resurrection from the dead in the final day. और इसलिए इस मकसद से मैं इसे गुजरता हूँ जिससे कि मैं अंतिम दिन में मैं पुनरुत्थान का प्राप्त कर लूं। God has given to each one of us the reward how we walk with him. और परमेश्वर ने हम सबको एक तोहफा दिया है, रिवॉर्ड दिया है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। If we are faithful in the day-to-day life in walking and obeying to him, we can walk with the Lord now, and we'll be very close to the Lord. After we die, we'll have a tremendous reward in heaven. और यदि आप हर दिन प्रभु के साथ विश्वास योग से चल रहे हैं, उनकी संगति में चल रहे हैं और जैसे ही एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो परमेश्वर के साथ हम आनंद करेंगे, वो हमें बहुत बड़ा इनाम देंगे। So we must try to do our best for the Lord, so that we can come closer to the Lord and be in his presence and enjoy the fellowship with him. इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरा प्रभु के लिए समर्पित हो जाना है और प्रभु के लिए जीना है। परमेश्वर हमारे लिए सब जीवन में कार्य करेगा। The earthly things are not going to give us joy and peace. Anything good in this world, any human being or money or riches or comfort, और संसार की कोई भी वस्तु जो है आपको कभी भी शांति नहीं देगा, चाहे कितना भी अच्छा मनुष्य हो या कोई भी वस्तु क्यों ना हो। the Apostle Paul said that Philippians chapter 3 verse 8, more than that I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I am suffered the loss of all things and count them but rubbish, in order that I may gain Christ. फिलिपियों के अध्याय 3:8 में वचन बताता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हानि उठाए और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। The Apostle Paul did not live to become rich or to become famous, even among Christians also. He just lived
to please God, and because of that he had to go through a lot of troubles and problems in his own life. प्रेरित पौलुस जो है दुनिया में महान बनने के लिए या मशहूर होने के लिए कभी भी नहीं जिया। उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जिया और परमेश्वर के साथ ही जीवन व्यतीत किया। So even though he was come from a very rich background, he considered all the riches and the fame of this world as rubbish. और प्रेरित पौलुस जो थे बहुत ही धनवान घराने से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि इस संसार की सब चीजों को वो पूरा समझते हैं। So that's why Jesus also, when he was the King of Kings, he came down to earth and sacrificed his life for us. और इसलिए यीशु मसीह भी स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। Even though he made this world, he said, "My kingdom is not of this world." और उन्होंने ही इस संसार पूरे जगत को बनाया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं इस जगत का नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ। My kingdom is from heaven and from above. और मेरा राज्य जो है स्वर्ग का राज्य है। So dear brothers, God has given us a wonderful kingdom. Let us be thankful to God and let us live faithfully before God. और इसलिए भाइयों, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज दिया है। आइए हम विश्वास योग प्रभु के साथ चले, विश्वास योग से जिए। The fear of God is the beginning of wisdom. क्योंकि प्रभु का भय मानना बुराई से अलग रहना है। All और ये other fears will बुद्धिमान का go. शुरुआत है। All other fears will go, and the godly fear will keep us secure in God, that God will take care of us. और सब प्रकार की जो भय है, डर है, वो चला जाएगा और परमेश्वर का जो है हमें ज्ञान और बुद्धि आएगा। And God will teach us how to hate evil and to love the good. और परमेश्वर जो है हमें अगुवाई करेगा कि किस प्रकार से हमें भलाई करना है, भलाई से प्रेम रखना है, बुराई से घृणा करना है।